point in time, getting more details on this. But right now, what we know is that Anil Dujana, a gangster, has been killed in encounter in Meerut. Now, that is the big breaking news we are getting in. This encounter took place in Meerut, and UP-STF, and in an encounter killed. नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो गैंगस्टर्स है वो या तो यूपी छोड़ के भाग गए हैं या तो उनको इनकाउंटर में मार गिराया है। Gangster Anil Dujana, the dreaded gangster, has been killed in an encounter, and we were getting more details on this. We're trying to get more inputs from the ground, but what we know so far is that this encounter took place in Meerut, where the UP-STF, in an encounter with this gangster Anil Dujana. Right now on your screens you can see some visuals also in connection with this story. Right now the UP-STF, you can see gangster Dujana has been killed in an encounter. And remember how the mafia and the gangsters in Uttar Pradesh have been of course हो यूपी पुलिस हो इसकी तलाश में जुटी हुई थी। पहले ये कहा गया था कि अनिल दुजाना दिल्ली में छुपा हो सकता है और फिर उसके बाद ये कहा गया कि हरियाणा में छुपा हो सकता है, लेकिन उसकी जो लोकेशन थी वो मेरठ निकल के आई और मेरठ पहुंचने के बाद यूपी-एसटीएफ ने पूरा जाल बुना और जाल बुनने के बाद जब इसको रोकने की कोशिश यूपी-एसटीएफ के द्वारा किया गया तो कहीं ना कहीं अनिल दुजाना की तरफ से पहली फायरिंग की गई और उसके बाद यूपी-एसटीएफ के द्वारा फायरिंग का शिकार अनिल दुजाना को होना पड़ा और ढेर हो गया। वहीं मौके पर अनिल दुजाना ढेर हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि अनिल दुजाना के साथ क्या इसके साथी भी थे। अभी थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। All right, we are also understanding that this is of course coming in as another crackdown on a mafia in Uttar Pradesh. Remember, the crackdown on mafias, on gangsters in Uttar Pradesh has been of course being much talked about of late, and now we are seeing this dreaded gangster on your screens right now in a moustache. You can see that is the dreaded gangster Anil Dujana, who has now been eliminated in an encounter. We are also understanding that this encounter took place in Meerut, and that is the breaking news we are getting in at this point in time. पर थे और काफ़ी दिनों से इसकी तलाश यूपी पुलिस के द्वारा की जा रही थी और साथ ही यूपी-एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी और साथ में जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं सराहनीय कार्रवाई हुई, क्योंकि अनिल दुजाना के ऊपर रंगदारी से लेकर के हत्या के कई सारे मामले लगे हुए थे और लगातार ही यूपी-एसटीएफ हो यूपी पुलिस हो लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। और बताया जा रहा है कि पहले जहाँ इसकी लोकेशन दिल्ली पाई गई उसके बाद कहा गया कि हरियाणा भाग गया, हरियाणा के बाद ये निकल के सामने आया कि मेरठ में कहीं ना कहीं अपने किसी खास रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। और उसके बाद जब यूपी-एसटीएफ के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई तो कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज फायरिंग में मारा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना खुकियात ये अपराधी था, कितना खुकियात ये गैंगस्टर था और लगातार ही ये चकमा देते हुए नजर आ रहा था और लगातार ही इसकी तलाश में यूपी-एसटीएफ जुटी हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर 50 से ज़्यादा मामले थे, क्योंकि इसके ऊपर रंगदारी से लेकर के हत्या के कई ऐसे मामले थे जिसमें इसकी तलाश की जा रही थी। All right, of course, this was much tagged, and remember, this Anil Dujana was being tagged, and earlier there was a tip-off that he might be in Delhi right now, as a reporter on ground was telling us. But right now, what we know that in an encounter in Uttar Pradesh, is in western UP's Meerut, he has been killed, and right now on your screens is the same man, the gangster right there in the middle. You can see is Anil Dujana, the gangster, the much dreaded gangster, and a complete crackdown on mafias, a complete crackdown on the gangsters. And remember, he faced several murder charges. He faced trial in a 2017 murder case as well. दुजाना के अनिल दुजाना की तलाश में यूपी-एसटीएफ जुटी हुई थी और यूपी पुलिस भी लगातार जुटी हुई थी। कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, बहुत सराहनीय कार्रवाई हुई। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से भयमुक्त बनाना है और उसके लिए माफियाओं को पूरी तरीके से ख़त्म होना है। तो उसी तरफ ये कहीं ना कहीं कार्रवाई होते हुए देखा जा सकता है। Right, of course, that Republic Network getting you all the details from ground. But right now, what we know so far is that this mafia don called Anil Dujana was facing several murder charges. He faced trial in 2017 murder case as well. And right now, what we know that he has been killed in an encounter with the UP-STF in Meerut, and he was, of course, facing several murder charges as well.
के फिराक में था। फिर ये भी खबर आई कि वो श्रीलंका भागने के फिराक में। कई ऐसे मामले में जिसमें इसकी तलाश की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसके गैंग के कई ऐसे लोग अभी भी सक्रिय हैं जिसकी तलाश अभी भी यूपी एसटीएफ की टीम कर रही है, यूपी पुलिस की टीम कर रही है। और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि तमाम जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, जितने भी इसके गैंगस्टर के लोग थे, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि यूपी में पूरी तरीके से भयमुक्त करने का संकल्प योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने लिया है। और उसके तरफ यहाँ पर यूपी एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, यूपी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक एक गैंगस्टर को यहाँ पे बख्शने का काम नहीं किया जा रहा है, उनका इतिहास निकाल के उनके द्वारा किए गए कांडों को निकाल करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम यूपी एसटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, तमाम जो सुरक्षा बल है वो करते हुए नजर आ रही है। All right, we're getting in latest details on that story. We're waiting more details, but we do know that this dreaded gangster called Anil Dujana was killed in an encounter in Meerut, and he was facing several murder charges. And right now, my colleague Vivek Rai is also joining us. Vivek Rai is joining us on the phone line for more. Vivek, what more details can you share with us? What was this gangster's history? Please share with our viewers. देखिए, माफिया अनिल दुजाना के बारे में बात की जाए तो उसके ऊपर कुल 62 ऐसे केस थे जो उस पर दर्ज थे। 18 ऐसे मर्डर के मामले थे जो उसके ऊपर दर्ज थे, रंगदारी के मामले थे, लूटपाट के मामले थे, जमीन पर कब्जा करने का मामला था। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के भी कई केसेस उसके ऊपर दर्ज थे और उसके ऊपर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका था। और साथ उस पर बात की जाए तो सुंदर भाटी पर AK-47 से हमले करने का भी वह आरोपी है। और इसके साथ ही साथ 2012 में वो जेल में था, 2021 से वो बाहर बेल पर था, यानी कि 9 साल वो जेल में भी रह चुका है। आज लेकिन मेरठ में उसकी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में उसकी एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने ये पूरी की पूरी घटना जो है एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ये घटना हुई है। हालांकि बाकी क्या चीजें रही हैं ये थोड़ी देर में क्लियर हो पाएंगी। एसटीएफ का ये पूरा का पूरा एक्शन है। और आपको बता दूं कि कुल अलग अलग केसेस मिलाकर के कुल 62 अलग अलग केसेस माफिया अनिल दुजाना पर थे उसके ऊपर, और जिसको लेकर के अलग अलग समय पर वो जेल में भी रहा है। फिलहाल 2021 से वो जेल के बाहर था, लेकिन कुछ और केसेस उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों में लगे थे। और आज पुलिस उसको पिछले केस में जब एसटीएफ उसको पकड़ने जा रही थी, दरमियान पुलिस पर फायरिंग की थी और इसी दौरान एसटीएफ ने भी उस पर फायरिंग की। हमारे साथ बने रहे विवेक, just stay with us. We are also getting in some more voices. Former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dinesh Sharma, is joining us on the phone line for more. Thank you so much, Mr. Sharma, for joining us on Republic TV. This, of course, is coming in as a big news. The crackdown on mafia, crackdown on gangsters in Uttar Pradesh continues. Another top gangster from UP has been now eliminated in an encounter with UP STF. देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है, और अगर सरकार किसी माफिया को सरेंडर करने के लिए कहे और माफिया से कहे कि माफिया के ऊपर वो उसका पीछा करे और माफिया उस पर गोली चलाए, तो निश्चित रूप में उनके पास में आत्मरक्षा का अधिकार आपने संविधान में दिया है। और मैं कह सकता हूं कि एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी है। आतंक का पर्याय कुछ माफिया गिरो रहे हैं पश्चिम में, और एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमने देखा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी कई बार जो कि इस खिलाफ बात करते रहे हैं, और अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टीज हैं वो कहती हैं कि ये इसको, वो कहती हैं कि अपने कानून को अपने हाथ में लेना कहती हैं। उन सबको आप क्या कहेंगे? नहीं, आप विपक्ष से एक बात को जरूर पूछना चाहिए कि अगर सामने से माफिया गोली बरसा रहा हो तो वो पुलिस को क्या राय देना चाहेंगे? पुलिस से कहेंगे कि आप गुलाब का फूल लेके उनके सामने कह दीजिए, या माफिया गोली चला रहा हो तो उससे पूछें कि आपकी जात कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, उसके बाद फिर गोली चलाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। संविधान ने उनको आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस काम कर रही है। तो उसमें अगर जनता के हित के लिए कोई माफिया या कोई गुंडा बदमाश किसी को पकड़ा जाता है, और पकड़ने में अगर कोई आमने सामने गोली चलती है, तो निश्चित रूप में पुलिस के पास में एक ही चारा बचता है कि अपनी आत्मरक्षा वो अपनी
अपने पास में जो उसके हथियार है उससे वो करे। और मैं समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्जनों मुकदमे के आरोपी थे और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और हमने देखा किस तरह से इसकी अगर हम बात करें, ये एक कुख्यात गैंगस्टर है, ही वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पंचायत इलेक्शंस, ही हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस, किस तरह से वो राजनीति में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार वो फरार भी चल रहे थे, तमाम तरह के केसेस उन पर थे। और हमने देखा है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते आए हैं किस तरह से जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और हम देख रहे हैं इसी कड़ी में एक के बाद एक हम इस तरह के केसेस देख रहे हैं। वी आर सीइंग द ड्रेडेड माफिया, द टॉप गैंगस्टर्स आर बीइंग ईदर एलिमिनेटेड और बीइंग टेकन टू लॉ। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है यूपी का जो अप्रोच है, जो गवर्नमेंट है यूपी की, वो किस तरह से अप्रोच अपनी जो है वो कायम रख रही है, अपनी बरकरार रख रही है, जो उनकी नीतियाँ हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं पॉलिटिक्स में, चाहे वो आते हैं, चाहे वो जो गैंगस्टर्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको किसी तरह से भी डिस्टर्ब करते हैं इस स्टेट में। देखिए, सरकार की एक स्पष्ट नीति है कि कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर लागू करना है और एक अच्छी कानून व्यवस्था हो जिसमें जनता को राहत हो और जनता मस्त रहे और अपराधी त्रस्त रहे। अपराधी जेल के अंदर या जेल के बाहर है, तमाम अपराधी तो जेल के अंदर से अपना राज्य चलाते थे, तो अब ना जेल के अंदर से चला पाए ना जेल के बाहर चला पाए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त प्रदेश कहलाए, अपराध मुक्त प्रदेश कहलाए। इसके लिए 2017 से निरंतर योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा हो पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल बना है और इसमें कोई जाति और धर्म के आधार पर नहीं, कोई क्षेत्र के आधार पर नहीं, अपराधी अपराधी है और अपराधी को दंड मिले, उसको जेल के सलाखों में भेजा जा सके, इसके लिए तमाम लोगों को जेल में भेजा है पुलिस ने। अब किसी को पकड़ते समय कोई अगर गोली चला दे तो निश्चित में पुलिस हाथ में गुलाब का फूल लेके नहीं चलेगी और उसके पास में संविधान ने उसको हथियार दिया है अपनी रक्षा और जनता की रक्षा के लिए, तो उसका प्रयोग होता है। और मैं समझता हूं कि ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की, उसका एक बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल करने वाला ये कृत्य है और एसटीएफ ने अपने प्राणों पर बाजी लगा के आज इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। जी, all right. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर शर्मा, थैंक यू सो मच। दैट वाज द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश joining us on that big story that has come in. Anil Dujana, to the right of your screens you can see that man, that is the dreaded gangster from western UP who has been neutralized in an encounter in Meerut.